have abundance of time. I don't need to go to college a lot and all. And at the same time, Mr. Narendra Modi launched a lot of things like Startup India, Made in India, Invest India, and all these things. So yeah, this is how I thought कि yeah, this is the right time to start. And अभी तो college का ही time चल रहा है. कुछ हो गया तो अच्छा है, कुछ नहीं हुआ तो so yeah, this was the motive to start. So yeah, I hope uh, you can ask next. Yeah, okay, sir. So, what are some suggestions would you give to the students interested in entrepreneurship from the very first year? Okay, so let's say I'm assuming two three things. यहाँ पर कि people are coming from a middle class background like me. ठीक है, कोई बहुत अमीर है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है, because they will already have contacts. So now, assuming कि you guys are, planning to start something of your own, so you guys can start with two type of services. One can be a research based thing, like you guys are researching on some technology, you guys are patenting it and all those things. One can be, it's not a very technical based product, like for us our product was the content we were providing. ठीक है, so I'm talking about the later one. I'm not talking about the research based products, ठीक है, जिसमें आपको patents लेने हैं and you will spend 2-3 years researching about, ठीक है, like EVs की battery design कर रहे हो आप लोग. I'm not talking about those type of product. I'm talking about another niche of products here. So yeah, how to start? See, the first thing when you have to start is that you need to know ki what is the problem you are facing, like what is the problem statement out here. So we use a term called SISP, that is solution in search of problem. Now what happens ki a lot of college students start something कि हाँ यार हम एक वेबसाइट बना लेंगे और इस पे राइटर्स को ले आएंगे, राइटर्स ऐसे लिखने लगेंगे एंड ये सब होगा. बट दे हैव नेवर थॉट अबाउट दिस थिंग कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम, इशू कहाँ है. तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हो. सेकेंड थिंग विच यू नीड टू नो इज तो यू शुड टॉक टू योर कस्टमर्स. ठीक है, यू शुड नो कि अच्छा प्रॉब्लम आ ही रही है, यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम कुछ लोगों के लिए सॉल्व कर रहे होगे. तो यू गाइस शुड बी वेरी क्लियर कि हु इज योर टारगेट ग्रुप, हु इज योर टारगेट मार्केट. जो प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर रहे हो वो किस ग्रुप के लिए कर रहे हो. ठीक है, यू शुड नो अबाउट योर कस्टमर पोर्टफोलियो कि आपका कस्टमर कौन सा है. वंस यू नो द कस्टमर पोर्टफोलियो, गो टू द कस्टमर्स. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे पता था मेरा कस्टमर स्टूडेंट है और पेरेंट्स है, बिकॉज पेरेंट्स विल बी पेइंग एंड स्टूडेंट्स विल बी टेलिंग देयर पेरेंट्स टू पे. सो नाउ व्हाट आई डिड अ वास्ट अमाउंट ऑफ सर्वे. मैं मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हो जाता और जो स्कूल के बच्चे आ रहे होते थे उनसे बात करता अपने प्रोडक्ट के बारे में. So yeah, this is how you should go, this is how you should think. First you should have a nice problem statement, then you should validate the problem statement कि लोगों को ये issues आ भी रहे हैं या सिर्फ मुझे ही लग रहा है कि ये issues आ रहे हैं. Third thing, you should go and talk to your customer market, you should go and talk to your target group. ठीक है, और target group को don't tell कि this is my product or something like that. Just go and ask them, talk to them. That's why we say talking to a lot of people is very important in a startup. ठीक है, so if you are in first or second year, if you are planning to start a startup, ठीक है, तो the safest way that I'll assuring you is that first find a problem statement, make your target group who will be buying your product or so. And then the third step would be going and talking to the target group. ठीक है, जितनी ज्यादा बातें कर सकते हो उतना ज्यादा समझो उन्हें. ठीक है, yeah, so this is how you should go about it. ठीक है. Okay, so thank you. Sir, a startup is successful if it generates revenue at any point. So, what are your views on this phrase? Okay, guys, you can't say this thing actually. Yeah, revenue it should generate at the end of the day. तुमने कुछ बनाया है तो उससे पैसा आना ही चाहिए. ठीक है, else you are doing NGO चला रहे हो तो अलग बात है. ठीक है, so yeah, a startup you can say is successful when it generate revenue, but it also depends कि कितना ज्यादा revenue, what is the ROI. अगर तुम दिन के 10 घंटे काम कर रहे हो और महीने में 30-40 हजार का ही प्रॉफिट जनरेट हो पा रहा है तो दैट्स नॉट वर्थ इट, दैट्स नॉट बीइंग सक्सेसफुल. ठीक है, so you should also see the ROI. अभी ROI दो तीन टर्म्स में है. Either you are burning huge amount of money to get consumer base and you are getting nice consumer base, so that's also an ROI because your valuation will be increasing, you will be having revenues and all. Like for example Amazon and जितने भी बड़े startups हैं अभी के टाइम के, Flipkart and these companies, they burn huge amount of cash to get the users on board and they were also earning revenue by selling the products. So there are two things. If you watch in terms of funded startups,
उनका अलग सीन है। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलेज लेवल स्टार्टअप्स कि आपने अभी स्टार्ट किया है एंड यू आर डाउन लाइक 6-7 महीने, यू हैव वर्कड ऑन योर आइडिया, यू हैव मेड योर प्रोडक्ट एंड लॉन्च्ड इट, ठीक है, यू हैव नॉट रिसीव्ड एनी फंडिंग, तो उस स्टेज पे यू मस्ट बी जनरेटिंग सम रेवेन्यू। यू नीड टू कंपेयर कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और आप कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वही बात है ना यार, अगर आप महीने में 500 मैन आवर्स दे रहे हो अपने काम को एंड यू आर जनरेटिंग लाइक 20-30 के, तो दैट्स नॉट वर्थ इट, ठीक है, जाकर जॉब कर लो, दैट वुड बी बेटर देन दैट। सो या यू नीड टू सी, उसके बाद यू नीड टू सी द प्रोजेक्शंस आल्सो कि क्या आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि, क्योंकि मैं अपनी इस केस बताता हूँ, हमने 10,000 रुपीज से स्टार्ट किया था पहला स्टार्टअप, जो बंद हो चुका है अभी, वी वर्क ऑन दैट फॉर 18 months, वी मेड सम मनी आउट ऑफ दैट। सो या अभी क्या हुआ, फर्स्ट 3 months वी डिड नॉट अर्न एनीथिंग, ठीक है, वी वर डूइंग कस्टमर रिसर्च, वी वर मेकिंग सॉफ्टवेयर, वी वर गोइंग टू कोचिंग, टॉकिंग टू स्टूडेंट, यू नो, ऑल दीज थिंग्स। फ्रॉम फोर्थ मंथ व्हेन वी लॉन्च आवर प्रोडक्ट, द फर्स्ट मंथ मुझे मतलब टोटल रेवेन्यू तो याद नहीं है, बट फर्स्ट मंथ में 16,000 का प्रॉफिट हुआ, सेकेंड मंथ में 16 आई थिंक 26,000 का प्रॉफिट हुआ, एंड थर्ड मंथ में 42,000 का प्रॉफिट हुआ। सो दीज आर प्रॉफिट्स, दीज आर नॉट रेवेन्यूज, दीज वेर आवर प्रॉफिट्स। तो विद इन 6 मंथ वी मेड समथिंग, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हमने किया। तो नाउ व्हाट वी सॉ कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है पर मंथ, ठीक है। सो यू शुड ऑल्सो सी दिस कि आपने अगर अभी स्टार्ट किया है तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि पहले महीने 20 लाख 30 लाख कमा रहे हो, यू नो 10 लाख कमा रहे हो। स्टार्ट स्मॉल, see if it is increasing, you know, week by week, month by month, is there a growth rate or not. If there is growth rate up to at least 15-20%, then you are going on the right track. If the growth rate is less than 20%, you need to return back to your drawing board. So yeah, you need to see, I hope I'm not, you know, मैं थोड़ा explain कर रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छे से I hope, you know, you guys are not getting bored or so. Or is there some time limit, Sukanya, for every answer? No, no, you can continue if you wish. लाइक आई बिलीव कि क्वेश्चंस कम हो, लेकिन मैं एक बार थॉरली एक्सप्लेन कर दूं चीजों को, ठीक है, इंस्टेड ऑफ, यू नो, Yeah, ज्यादा sure, क्वेश्चंस और sure, you बेकार can. एक्सप्लेनेशन के। सो या फॉर द सक्सेसफुल थिंग ऑफ रेवेन्यू, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप फर्स्ट मंथ से कमाओ, इट मे बी अ सिनेरियो 7-8-10-12 महीने तक आप ना कमाओ, बट व्हेन यू स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू, जस्ट सी व्हाट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू यू आर जनरेटिंग, ठीक है, देन सी द ग्रोथ रेट ऑफ कि आपका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वीक बाय वीक कस्टमर्स इंक्रीज कर रहे हैं, मंथ बाय मंथ रेवेन्यू ग्रो कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा है, स्टैग्नेंट हो रहा है, लो हो रहा है, then think about that if you can do something or not. If not, then shut it down. Don't waste your time a lot on that, because you know time is also a resource. So I guess that was it for this question. Okay, sir. So there is a question from the audience. They asked you. The question is how to grow a blog website and make it profitable. यार ये बहुत ज्यादा पर्सनलाइज क्वेश्चन हो गया यार, ठीक है, क्योंकि मैंने कभी खुद ब्लॉगिंग की नहीं है। आई कैन टेल यू अबाउट जनरल बिजनेस थिंग्स एंड ऑल, बट यू नो डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल, इसमें मैंने काम नहीं किया है, तो सॉरी यार, आई कांट टेल अ लॉट अबाउट दिस। आई एम रियली सॉरी यार, मेरा ये वाला डोमेन नहीं है Yes, एक्चुअली। sir. So if you guys have to ask Okay, question, so so next. some general questions about business development you can ask: how to start, how to manage the money, how to see if things are working out or not, how to go about raising fund and all. You guys can ask such questions, but you know, don't ask very peculiar questions कि किसी एक इंडस्ट्री में particularly कैसा होगा. So yeah, because I have worked only in edtech industry mainly and a little bit of IT in infra and all. So मैं हर industry के बारे में, you know, I'm not a good expert to ask. Oh, thank you, sir. Sir, what advice do you give to a student who is at the beginning of his or her journey as an entrepreneur? So guys, first thing ये है कि क्या करना चाहिए तुम्हें, अगर मैं याद करूँ, हाँ, फर्स्ट थिंग मेक अ नाइस ग्रुप ऑफ पीपल हु वांना वर्क ऑन दैट योर आइडिया, ठीक है। सेकंड थिंग इज, बहुत सारे लोग अपना आइडिया शेयर करने से डरते हैं कि हम बताएंगे कोई और कॉपी कर लेगा। सो ऐसा कुछ नहीं होता यार इंडस्ट्री में, ठीक है। लोग करते हैं कॉपी, नो डाउट यार उसके लिए, बट जस्ट थिंक अबाउट दिस कि अगर कोई तुम्हारा आइडिया सुन के, तुम्हारी पिच डेक देख के वो आइडिया कॉपी कर लेता है और तुमसे बेटर कर लेता है, तो ही डिजर्व दैट, ठीक है। So yeah, don't ever be afraid of sharing your ideas with people. You can hide some technical details, of course. हर चीज नहीं बतानी है, but you can tell in general कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, all these things, so that you can get advice. Second thing is try to find a nice mentor. If you like, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई mentor नहीं था, ठीक है। अपन ने जितना किया ना, 10,000 रुपए से स्टार्ट करके 1 लाख रुपए का रेवेन्यू, उसके बाद थोड़ा बहुत फंड रेज एंड ऑल दोज थिंग्स, you know, I never had a mentor. I just got a mentor in
लाइक रिसेंट 10 महीने पहले मुझे एक मेंटोर मिला एंड मैंने ये सब फर्स्ट ईयर के टाइम किया था कॉलेज का. सो या, get a mentor if you can get from that industry expert so that you know he can guide you through the process. Third thing, don't get disheartened. ठीक है, मैंने अपना स्टार्टअप पैसे कमा के बंद किया, फंड रेज करके बंद किया. ठीक है, उसके बाद मेरी अभी कोविड के टाइम का क्या सीन हुआ, मेरी जितनी सेविंग्स थी दे ऑल dwindled. नाउ आई एम गोइंग फॉर अ जॉब एंड वर्किंग ऑन माय साइड प्रोजेक्ट. ठीक है, तो अब तो मुझे ऐसा सोचना चाहिए था कि यार 4 साल मैंने स्टार्टअप में लगाया, मैंने थोड़ा पैसा कमाया, थोड़ा सा नाम भी हो गया, टेडेक्स में भी चला गया, अब मैं जॉब करने जाऊंगा, ये तो बहुत शर्म की बात है, तो डोंट गेट डिसहर्टेंड. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. कीप हसलिंग. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा मेंटेन करके चलना. व्हेन यू आर वर्किंग इन अ स्टार्टअप सीरियसली, तो you will need to give 10 to 12 hours per day at least. If you are not able to give at least 10 to 12 hours per day to your startup, just shut it down. There is no meaning doing that thing. ठीक है, so अभी उसमें क्या होता है ना कि पर्सनल लाइफ लगभग खत्म से हो जाती है. यू स्टॉप गोइंग टू पार्टीज, you stop hanging out with friends, you stop going out, getaways के लिए, you start giving less time to your girlfriends or relationships and all. So थोड़ा सा उस साइड को मेंटेन करना, cause अगर तुम्हारी पर्सनल लाइफ अच्छी चलेगी ना, तो it would give you a boost and you can focus more on your professional thing. So yeah, focus. If you are starting it out, right, if it's day one, and if I had to advise, first thing is find a mentor, subscribe to some nice courses on Y Combinator and all. Third thing will be, don't stake your personal life also, focus a bit on your personal life also. So these will be the 3 most important things I would suggest. Thank you, sir. Sir, next question is, sir, entrepreneurship or IT, which can be a good career? Also, first year students are pretty much confused about what to do when they are new to the both thing. So, can they choose the right career for them? What was the first line? Entrepreneurship versus what was it? Entrepreneurship or IT? IT jobs, na? I guess IT means I for Italy, T for Tuscon, something like that, na? I guess. Okay, like the voice was not clear. Sorry, Yes. guys. See, entrepreneurship is not a job. Okay, it's a something, a go-getter thing. When you will start something of your own, so you will need to maybe make your website, maybe work on a bit on the software side, maybe write content, go to market, do market research, meet a lot of people, analyze the data, analyze कि लोगों का क्या कहना है, then accordingly build your product. ठीक है, तो entrepreneurship is about go getting वाली thing हो जाती है. You need to do anything which is necessary there. Your role as a founder or as a co-founder, ठीक है, when you are starting, so your role is not bounded कि you will only work on the software या something. You have very diversified role. You will be learning about finance, you will be learning about economics, you will be learning about driving forces of the market, you will learn about how to talk to people, you will learn about sales. सबसे important चीज होती है sales life में. ठीक है, that's the most important thing to learn in a startup or in your life. ठीक है, so yeah, entrepreneurship is about more about go-getter thing. You will need to do anything which is required. Sometimes you may be writing content, sometimes you may be designing posters on Canva. So you may be, sometimes you may be thinking about creative, sometimes you may be thinking about revenue model and all. So if you go in entrepreneurship, you will learn n number of different fields. ठीक है, सबके बारे में तुम्हें बहुत कुछ आइडिया हो जाएगा. When you go in a IT infra, like let's say if you are working for Morgan Stanley, you are working at a, SD post, let's say in Qualcomm and all, so you will be only constricted in the same field. Growth दोनों में है, ऐसा नहीं है. Like see, I belong to a tier 3 college. मेरे कॉलेज से 3.5 लाख 4 लाख की पैकेजेस लगती हैं जनरली. But I was for 4 year in startups and all. तो अभी when I'm switching कि चलो अब मैं थोड़े देर जॉब करूंगा 1-1.5 साल, लेट माई माइंड गेट क्लियर, लेट मी टेक अ रेस्ट, तो आई वाज इजीली एबल टू गेट अ जॉब वर्थ 10 to 14 lakhs वाले पैकेज का जॉब अपने को मिल गया. तो इफ यू कम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एंड एक्चुअली यू आर डूइंग वर्क, ठीक है, क्योंकि 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक बस दिखाएंगे हाँ हम काम कर रहे हैं बट ऑन ग्राउंड कुछ नहीं दिख रहा होता है. सो एक्चुअली इफ यू हैव वर्कड अ लॉट, तो पीपल विल नो यू. 2 मिनट बात करके पता लग जाएगा कि आर यू वर्थ इट और नॉट. तो इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन फाइंड अ जॉब एनी डे. लाइक यार अभी कोविड-19 के टाइम भी नौकरियां मिल जा रही हैं लोगों को. ठीक है, सो इफ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू कैन फाइंड अ जॉब एनी डे. ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा. बट इफ यू आर इन एन IT सेक्टर और समथिंग, इट्स ऑल्सो वेल एंड गुड. तो देर इज नो कंपेरिजन बिटवीन देम, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस. कुछ लोगों को, जैसे मेरे जैसे लोगों को ना थ्रिल चाहिए होता है लाइफ में लगातार,
ना कुछ होता रहे लाइफ में, वरना बोर हो जाता हूँ मैं. सो दैट्स व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज फॉर मी. You can give it a shot, you can try it once. If you don't find it nice, don't find, being a go getter, you can always switch to the IT thing because you are in college. 4 साल अभी तुम्हें जितने पाप करने हैं ना कॉलेज में कर लो, जैसे ही पास हो गए वो रीसेट बटन दब जाएगा तुम्हारे कॉलेज का, सब कुछ ठीक हो जाएगा. हो सकता है ज्यादा पाप किए हैं मेरी तरह अगर तुमने, तो लेट्स से अगर तुम्हारी एवरेज प्लेसमेंट 15, 18, 20 लाख की है, तुम्हारी थोड़ी कम की लगेगी, 10 की लगेगी, लेकिन मर नहीं जाओगे. ठीक है, जिंदगी में खुश रहोगे कि ट्राई करके देख लिया ये चीज. ठीक है. सो या इफ यू फील कि यू वांट टू स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, जस्ट गो डू इट. अगर चल गया तो इट्स वेरी गुड, नहीं चला तो you have your college years. You can always press the reset button, you can always change the field and all. ठीक है. So that's why there is no comparison between entrepreneurship versus any other thing. Both are good, both are bad, both have their own cons and pros. So yeah, I guess. Oh, thank you, sir. So one of the question asked by an audience. Sir, what are the prerequisites before reaching out of the banks for funds, and any tips on creating a project plan to present before investors? यार सी, इन्वेस्टर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखो, फर्स्ट थिंग मैं फिर से बात करता हूँ इन्वेस्टर के बारे में ना. ठीक है. देखो अपना क्या सीन था ना, मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक इवेंट में गया हुआ था. वी वर ऑलरेडी मेकिंग रेवेन्यू, हमने 10,000 के इन्वेस्टमेंट से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया था. तो इन्वेस्टर्स बियर पी रहे थे और मैं कॉफी पी रहा था. आई जस्ट वेंट टू देम टू गेट वैलिडेशन ऑफ आइडिया एंड ऑल. दे वेर इंटरेस्टेड कि हाँ यार ये चीज है. सो एक मतलब आइडिया पे पैसे कमा रहे हैं. सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, एक इन्वेस्टर क्या देखता है, तो देयर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एन इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड. वन इज योर टोटल रेवेन्यू, that is sorry your gross revenue, right? Like how much you total earn in a particular period of time, in maybe a fiscal year or maybe in a month or maybe in 2 months or so. So try to maximize that figure. Your gross revenue should be very high. जितना ज्यादा हो सकता है उतना अच्छा है. Second thing that he will be looking will be is your net profit, कि तुमने नेट प्रॉफिट कितना कमाया. क्योंकि अभी आई वाज co-founder of a startup called My Medicine Box. So thing is कि medicines में margins are very thin. We had a gross revenue of 4.5 CR this year, मतलब last fiscal year 2019-20 का. But the profits were not very high. The profits were very very low. It was at break even only. तो 4.5 करोड़ के टर्नओवर के बाद भी कंपनी बस ब्रेक इवन पे थी. So this is one thing. ठीक है. तो that's why investors were not very much interested into that part, like that startup to invest. So your gross revenue should be high, your net profit should be high, your margin should be better. क्योंकि अगर हिंदी में देखें ना तो मक्खी वहीं आएगी जहां पर गुड़ होता है. ठीक है, सिंपल है ना. तो एन इन्वेस्टर शुड सी हिज वैल्यू कि हाँ यार अगर मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये स्केल करेगा. सेकेंड थिंग एन इन्वेस्टर विल सी इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ योर टीम. जितने लोग स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, जो को फाउंडर्स हैं, ठीक है, जो सीटीओ है, मे बी वट एवर इज द कोर टीम, वट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द टीम. क्या वो टीम कुछ गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट से काम करके आए हुए इंजीनियर्स की बनी हुई है? क्या उस टीम ने पहले, अब मैं अज्यूम करता हूँ कि अगर वैसा नहीं भी होता है, तो क्या उस टीम ने पहले जितने लोग हैं उन्होंने क्या किया है, किन हैकाथन्स में गए हैं, अगर कोडिंग के लिए देख रहे हैं तो कोडिंग में उन्होंने क्या उखाड़ा है, क्या नहीं किया है जिंदगी में. सो दे विल एनालाइज एवरीथिंग. ठीक है. सो दीज आर 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि योर टीम शुड बी वेरी क्रेडिबल व्हेन यू आर गोइंग टू एन इन्वेस्टर. योर टीम शुड बी डेडिकेटेड टू योर वर्क. थर्ड थिंग इज योर नंबर शुड बी वेरी क्लियर. ठीक है. when you go to an investor, the investor will not listen to your pitch deck. उसको कहानी नहीं सुनने का होता है, उसको नंबर्स में मतलब है. नंबर्स कैसे? ग्रोथ रेट क्या है भाई, वीकली ग्रोथ रेट क्या है, ईयरली ग्रोथ रेट क्या है, लास्ट मंथ और इस मंथ में रेवेन्यू का क्या डिफरेंस आया, कितने नए क्लाइंट्स एक्वायर हुए, कंपनी का चर्न रेट क्या है, ठीक है, कैश बर्न कितना हो रहा है, कैश बर्न को मिनिमाइज कितना कर सकते हैं, ठीक है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स एन इन्वेस्टर इज इंटरेस्टेड इन. And yeah, again, when to go to an investor. So the best time to go to an investor, to pitch to an investor is when you have launched your product and तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में 5-6 महीने से चल रहा है and you are generating some revenue. So that is the best time to go to an investor. क्योंकि जब तक तुमने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, कोई घंटा इंटरेस्ट नहीं लेगा.
ठीक है। अगेन अगर कोई बहुत साइंटिफिक प्रोडक्ट है ना, लाइक तुमने कोई नई जबान बैटरी बना दी है जो 20 साल चलती है, चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे प्रोडक्ट में हर बंदा इंटरेस्ट खुद लेने आ जाएगा जैसे ही तुम पेटेंट करोगे। बट अगर तुम कोई सर्विस बना रहे हो, कोई सैस बेस्ड स्टार्टअप है, और समथिंग एल्स लाइक दैट, ठीक है, तुमने कोई एआई चैटबॉट बनाया है जो बैंक्स की हेल्प कर रहा है, मे बी समथिंग लाइक दैट, तो यू नीड कि तुम्हारे पास एक रेवेन्यू हो, तुम रेवेन्यू दिखा पाओ ताकि वो इंटरेस्ट ले। वरना क्या होता है ना, आइडिया सबके दिमाग में होते हैं, डेली नहाते टाइम 4 नए आइडियाज आते हैं कि शावर का डिजाइन चेंज कर दिया जाए तो वाटर का फ्लो चेंज हो जाएगा, नहाने में ज्यादा मजा आएगा। बट देन हम नहा कर आते हैं और कुछ और काम में लग जाते हैं। सो आइडिएशन स्टेज पे इन्वेस्टर्स आर नॉट मच इंटरेस्टेड। Investors are actually interested when you have launched your product, it's in the market and it's generating revenue. So the best time to go to an investor is that time only. उससे पहले अगर जा रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारा भी टाइम खराब होगा और उसका भी टाइम खराब होगा। So yeah. Okay, thank you, sir. Sir, the last question asked by an audience, Sahil Jain. He asked, what advice would you give to the people in college who also wish to start up? स्टार्ट कर दो, बेस्ट थिंग है यार। डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, मेक अ टीम, कनेक्ट विद मी ओवर लिंक्डइन। अगर कुछ सवाल है तो पूछ सकते हो वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड या इफ यू वांट टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, वेरी सिंपल, जस्ट स्टार्ट इट, ठीक है। यू नो it's never $1 billion idea, it's always $1 billion execution, so focus on your team, focus on the execution part, focus on the resources you need, how to get the resources, and just start it। जैसे नाइकी का लोगो कहता है ना, just do it, ठीक है। So वैसे ही just start it। If you will fail, you will learn a lot of things, you can get a job। जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने लिंक्डइन पे 2 दिन पहले पोस्ट डाला कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, माय जॉब ऑफर वाज रिवोक्ड। देखो मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास सेविंग्स नहीं है, मेरे पास मेरे नेक्स्ट 10 महीने की सेविंग्स है। आई डोंट नीड अ जॉब एक्चुअली, इफ यू सी, बट मैं खाली नहीं बैठना चाहता हूँ अभी अभी, ठीक है। सो आई जस्ट पुट डाउन अ पोस्ट कि यार आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, एंड मैंने 3 दिन में 22 इंटरव्यूज दिए, रेंजिंग फ्रॉम मास्टर गार्ड के इंटरव्यू से लेके वीजा इंक का इंटरव्यू, बाईजूस, और मुझे सेल्स में जाना था बिकॉज आई एम ऑलवेज अ सेल्समैन। Now what I am trying to prove from here is that even if you fail in your startup, even if you shut it down, even if, but ठीक है, सब खराब हो गया जिंदगी में, तुम्हारी सेविंग्स डूब गई तुम्हारी, लाइक सिर्फ और सिर्फ फेब और मार्च में मिला के मेरा 5 to 7 lakhs का सेविंग था, वो सारा डूब चुका है मेरा, ठीक है। दैट्स वाई। सो सब कुछ होने के बाद भी ना, इफ यू हैव एक्चुअली वर्कड ऑन योर स्टार्टअप एंड यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स वर्किंग ऑन दैट, यू कैन इजिली गेट अ जॉब, ठीक है। सो डोंट वरी कि यार स्टार्टअप किया, कॉलेज में कॉम्पिटिटिव कोडिंग नहीं की, सो यार जॉब नहीं मिल पाएगी, ये वो। सो यू विल गेट अ जॉब ऑफ योर चॉइस वेर एवर यू विश, मे बी पैकेज थोड़ा कम मिले, बाकियों का 25 का हो, तुम्हारा 10 का हो, ठीक है। दिस कैन बी अ सिनेरियो बट यू विल गेट इट। सो या बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, यू नेवर हैव टू वरी अबाउट अ जॉब की जॉब कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, तुम्हारा इतना नेटवर्क होगा कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो डोंट वरी अबाउट योर सर्वाइवल, सर्वाइवल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सो नाउ इफ यू हैव एनी आइडिया टू स्टार्ट, स्टार्ट इट, सिंपल एनफ, जस्ट स्टार्ट इट, इतना नहीं सोचना है। जो होगा यार आगे देख लिया जाता है, ठीक है। नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा तुम्हारा, तुम बहुत कुछ सीख जाओगे। सो जस्ट स्टार्ट इट, सिंपली एनफ। Okay, so thank you, sir. It was a fruitful experience with you. We are glad to have you in this talk session. So we will end the talk session right now. थैंक Thank यू you, sir. गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ।